Very good morning to all of you. Today's resource person, Mr. Hemendra Sata, in charge principal of our college, Dr. Shali Joseph, vice principal, Mr. Bhai Shailendra Mane, and all my dear students of Department of Human Resource Management. Very warm welcome to this virtual orientation visit and interaction session in regard to Sun Pharmaceuticals Industries Limited, Halol, Gujarat. We will start the session with small prayer, which is in Marathi, the content of which talks about spreading humanity. Be human, treat everyone as a human, spread love, serve others, follow a path of humanity. So here's the prayer. हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे द्वेष सारे संपुदे धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे पुन्हा बसलो मनावर शुद्धतेचे चांदणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले पावले चालू पुढे जे थांबले ते संपले घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा लाभणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना Hi everyone, I am Jeevan Burate, class teacher of HRM department. Dear sir, I am associated with this institute since year 2002. It's my pleasure that I have got this opportunity to welcome you sir on this e-platform. Here I feel it's my responsibility first to introduce you sir with our institute. Yashwantrao Chavan School of Social Work, Satara is an institute established in the name of late Yashwantraoji Chavan, the first Chief Minister of Maharashtra and the former Defense Minister of India.
This institute was established by Honorable Padma Shri Lakshman Mane sir, one of the popular writer, activist, and a true social worker, man with a different vision. He has been born and brought up from a very poor family. Despite all his hardships, he started with a very small organization named Bharatiya Bhatke Vimukta Vikas va Sanshodhan Samstha Satara, which is primarily working for education and research of denotified and nomadic tribes. Through this organization, various ashram schools and our social work college is working. Lakshman Mane sir got inspiration from Yashwantrao Chavan, which resulted in establishment of this organization. Honorable Chavan sir was the first president of this organization. After him, since year 1987, the president of this organization is Honorable Sharat Chandraji Pawar Sahib. Now, under his leadership and guidance, this organization is flourishing day by day. It is adding new feathers every year. We feel very much proud to share with you that 3 of our ashram schools are ISO 9000-2015 certified ashram schools. Under the aegis of this Bharatiya Bhatke Vimukta Vikas va Sanshodhan Samstha, our social work college was established in year 1994. From day one itself, our MSW degree course was launched on grant in aid basis from state government of Maharashtra. After this, we started BSW degree course in year 1996. Around 2000 plus graduates have pursued their degrees and are working as professional social workers in different parts of India and abroad as well. We are also running 2 family counseling centers and Vihan Community Support Center for HIV positive people. We are also involved in lot of institutional social responsibilities. We are very much proud to share with you, sir, that in this current COVID-19 pandemic situation, we have raised a donation of around 13.5 lakh rupees, through which we have distributed ration kits to around 900 plus families in and around Satara. Still, this work is in process. In current scenario, education has also got a huge transformation process. Now, physical attendance because of pandemic situation is not possible. So now every institute has started this teaching learning process in online mode. So we thought, why not? We also can take this opportunity to share expertise and experiences of HR professionals of different reputed industries with our students who are going to be the upcoming HR professionals. So, sir, we today have arranged such type of session which will really help our student to develop an understanding about the different functions and roles played by HR professionals. Now today we are having students from second year who have just started their journey in the world of HR. Sir, I just want to mention here that we have started our online sessions with these students from just last month. So the students are very much new to this profession or the field of HR. So we expect a brief orientation about the working of HR and the current scenario is. So dear sir and all dear students, once again on behalf of our institute, I welcome all of you to this virtual orientation visit. Now I request our Honorable In-Charge Principal, Dr. Shali Joseph, to please deliver her introductory speech. Over to you, Shali ma'am. Yeah, thank you, Jeevan sir. Respected Mahendra sir, Jeevan sir, the class teacher of HRM department, the Bhai Mane, the vice principal of our college, and also my dear students, those who are eager to hear from Mahendra sir. And first of all, I would like to welcome Mahendra sir for this interactive session. Of course, we teach them the theory. Maybe I always say that the function of HR manager, HR personals are always a challenging job. From entry to exit, they have to deal with various functions. Maybe the wage and salary administration, the recruitment, or maybe the issues of absenteeism, labor welfare, industrial relation aspect. All these things HR manager are responsible to deliver services related to this. And every day for an HR manager, it is a new day. They have to deal with the new problems, new situations. Here,
the innovation and the creativity of the HR managers or HR personnel are highly important. So there is not a single day they cannot go without dealing any problem in the industrial setup where they are working. And the same time, I also understand that this is a very satisfying profession also, because we can intervene into the problems of the employees, as well as we can try our level best to increase the productivity of the industry by way of handling the things in a better way. And I believe that this orientation will really help the students to get an insight towards how the HR managers functions in different their different functional areas in the industry. And we always teach the students theory, and the practitioners like you really enrich the students with the practical knowledge. And sir, we have a tradition of giving maximum practical input to the students. I am very proud to say that all our ex-students are working in reputed organizations with different industries all over India, and we get a very, very good feedback from the industries, and sometimes the industries come to us searching for the students. So this year also we would like to train our student in such a manner so that they get best job placement and they can serve the industries, the employees, and thus to the nation also. Once again, I welcome you, sir, for this session, and I request that the students to be attentive and ask your doubts, clarify your doubts without any hesitation. Thank you so much, sir. Over to Jivans. Thank you, Shali ma'am, for your words. Before proceeding further, today we are also having with us the Group HR Head of Muta Group of Industries, Satara, Ms. Shakuntala Pawar, who is also our alumni. And because of her support only, this today to organize this session, it was possible. So a very warm welcome you, ma'am, on this e-platform. Now I would like to introduce today's speaker, Hemendra J. Sata, having an experience of 19 plus years in the areas of performance management, employee engagement, reward and recognition, training and development, a professional using all available HR tools in making workplace a great place to work, a soft skills trainer and coach for aspiring MBA students. As far as his educational qualification is concerned, Sir has completed his BCom from Gujarat University, then MBA in HR and marketing from Nagpur University. He has completed his higher diploma in IT from Tata Infotech. He has also completed leadership program from Harvard Business Publishing School. Sir is a certified internal auditor for ISO 19011 and also a certified soft skill trainer and coach. Speaking about his professional journey, Sir started his career as human resource executive in Reliance Industries Limited from year 2001, and he was there till 2009. After that, Sir worked as a head talent management in Gujarat Circle for MTS, Systema Sham Teleservices Limited, from 2009 to 2012. Then he worked as manager IR and employee relations of Ferrero India Private Limited from September 12 to March 14. Then as a head human resource and IR of the Inshaw's Dairy Foods Private Limited from April 2014 till January 2017. After this, he joined as head human resource of Abbott Nutrition India from January 17 to December 18. And currently, sir is working as an head human resource and admin with Sun Pharmaceutical Industries Limited, Halol plant, which is situated in Gujarat. Since December 2018 onwards, he is associated with this particular group. Today, sir is going to talk about this Sun Pharmaceutical Industries Limited itself. Other notable things about sir, which I just want to mention here, are that sir
as a part of NCC has received A, B, and C certificate from Air Wing. He has represented Gujarat University for handball nationals and also has represented Gujarat state for football also. So we are very fortunate enough to have here on this platform such a versatile personality with us, which is having a very big HR experience. So Hemendra sir, once again, very warm welcome to you, sir, on behalf of our institute, on behalf of our students as well as the department. Now I request Hemendra sir to take the charge and start with the session. Over to you, Hemendra sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. In fact, it is an honor for me to talk to you all today. And I will use Hindi as a language of communication because I think if we are committed to our roots, then it's better to interact. English might be one of the good corporate languages, and I have been fortunate that I have studied through St. Xavier's, which is one of the best institutes. But when I interact, I generally interact in Hindi. I know Marathi because for 14 years I have, in my career, in my professional life, I have been in Maharashtra. I have been a colleague of Ms. Shakuntala Pawar, and I have been in Baramati. I have been to the Kash Pathar with Shakuntala, so I know from where you come. It's a beautiful place. And Shakuntala, as a professional, what I know about her, she is a very, very thorough professional, a very good human being. And somewhere it goes to the alma mater where the institute has contributed to her growth. And in fact, I have learned many things from Shakuntala. In fact, today, the pandemic is teaching the HR professional what they have not learned in the entire career. So last 4 months have been so instrumental that, the learning of last 18.5 years and the learning of these 4 months, we can just say they are equal. It's such a big learning. So it is in fact a very, very big turning point for the profession of HR because the entire syllabus has changed. You don't know what the next question would be, what would the next situation would be. And you have to be a very, very fast learner plus a very quick decision maker because a split-second decision can make a difference. And you have to be with your people on ground. If you are not there, you will lose a lot of credibility, and of course that will impact your business. I would like to start with the presentation so that we talk. Precisely, the time is 11:15, so I have to wrap up another 30 minutes for you all to ask me more questions. क्योंकि आपके सवाल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये प्रेजेंटेशन मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है ताकि आपके सवाल इससे उभर के आ सकें. मैं सन फार्मा हालोल में कार्यरत हूँ. सन फार्मा के बारे में और फिर हालोल के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं. Sun Pharma believes in humility, integrity, passion and innovation. इसको ये लोग सनोलॉजी कहते हैं. Sun plus ideology becomes sonology. So हम जो भी काम करते हैं ये 4 पिलर्स को हमेशा दिमाग में रख के करते हैं. जब भी डिसीजन डायलेमा आता है, जब भी डायलेमा आता है कि पॉलिसी कैसे बनानी, उसका बेनिफिट कहाँ जाना चाहिए, स्पेशली ऐसे समय जब हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये हमें सही दिशा में गाइड करते हैं. ह्यूमिलिटी, इंटीग्रिटी, पैशन और इनोवेशन. हमारे ओनर मिस्टर दिलीप सांघवी के जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. 1983 में अपने फादर से 10,000 रुपये उधार लिए थे उन्होंने. 10,000 रुपये के उधार के साथ अपना बिजनेस
उन्होंने शुरू किया था। वो कॉमर्स के ग्रेजुएट है, ही इज अ बीकॉम फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उनकी वाइफ फार्मासिस्ट थी, तो उनको दिमाग में आया, पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, दवाइयाँ बेचते थे, और वहाँ से उन्हें आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपनी कंपनी खोलूँ। अपने फादर शांतिलाल सांघवी से उन्होंने 10,000 रुपये उधार लिए 1983 में। वापी में अपनी फैक्ट्री शुरू करी, 5 प्रोडक्ट्स और 5 एम्प्लॉयज के साथ शुरू होने वाली फैक्ट्री आज 35,000 करोड़ की भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। इसके 2 बड़े एक्विजिशंस हैं। रैनबैक्सी को इसने टेक ओवर किया था 2014 में, और टारो को उन्होंने 1996 में टेक ओवर किया था। टारो, मैं आपको बता दूं, ये इजराइल की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। सन फार्मा एक जेनेरिक फार्मा कंपनी है। जेनेरिक फार्मा कंपनी का मतलब होता है कि ये पेटेंट नहीं बनाती है। कहने का मतलब है जो दवाइयाँ बनती हैं वो फाइजर या एबट जैसी कंपनी या माइलन जैसी कंपनी बनाती है, जो पहला प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद उसके 20 साल प्रोडक्ट के जब खत्म हो जाते हैं, उनकी मार्केट ओपन हो जाती है, उस मार्केट में जो दवाइयाँ बेच सकते हैं या दो दवाइयाँ बेचते हैं, उन्हें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी कहा जाता है। एंड सन फार्मा इज इंडियाज नंबर 1 जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि टारो जो इजराइल का सबसे बड़ा ब्रांड था, उसको उन्होंने 2010 में टेक ओवर किया, 2014 में रैनबैक्सी को टेक ओवर किया, और आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये सन फार्मा एट ए ग्लांस है, यूएस की 5वीं, इंडिया की पहली, इमर्जिंग मार्केट्स की लार्जेस्ट, यूरोप की सबसे एक्सपैंडिंग। इनके 41 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। 150 से ज्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। 2000 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं, 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, और यूएस एफडीए कंप्लायंट कंपनी है। R&D पे अपना बहुत बड़ा जो इनका प्रॉफिट है, वो बहुत बड़ा ये लोग R&D में इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी जो दवाइयाँ हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ड्रग्स, जो आसानी से मार्केट में कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता, और यही इनका यूएसपी है। सन फार्मा का 50% जो प्रॉफिट है वो यूएस मार्केट से आता है, और यूएस में सबसे बड़ी अगर जेनेरिक फार्मा कंपनी कोई है तो वो सन फार्मा। ये उन 5 कंपनियों के नाम हैं, टेवा, माइलन, नोवार्टिस, फाइजर और सन फार्मा। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी, ग्लोबल कंपनी। ये इसके प्लांट के लोकेशंस हैं। और अब आ जाते हैं जिस साइट पर मैं हूँ, हालोल पे। हालोल इज सन फार्मा's बिगेस्ट साइट। सन फार्मा के 17 मैन्युफैक्चरिंग 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, जिसमें सबसे बड़ा यूनिट जो है वो हालोल है। हालोल बड़ौदा के नज़दीक है, 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावागढ़ हिल्स के बिल्कुल नज़दीक है। हमारे प्लांट से पावागढ़ का मंदिर दिखता है, जो गुजरात का एक टूरिस्ट स्पॉट है, और काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। ये मेन रोड पर हमारा प्लांट है। जो प्लांट पे अभी हम हैं उसको पहले एमजे फार्मा कहा जाता था, जो 1983 में बना था, और सन फार्मा ने उसको 1997 में एक्वायर किया। टोटल 28 एकड़ में ये प्लांट फैला हुआ है, 28 एकड़्स, और इसमें स्टेराइल और नॉन स्टेराइल यानी इंजेक्शंस और टैबलेट्स दोनों ही बनते हैं। इसके 2 प्लांट हेड हैं, 2 क्वालिटी हेड हैं, एक इंजीनियरिंग, एक QC हेड है, 2 रीजनल हेड्स हैं। इस प्लांट में करीब 4100 प्लस का मैन पावर है। ये जो आपको फोटो दिख रही है,
ये उस प्लांट का एरियल व्यू है जिसको मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा। इसमें स्टाफ में 1092, टेक्नीशियंस में 1087, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 1991 एंड 393 आर जॉब वर्कमेन। ये सारे लोग इस प्लांट के अंदर काम करते हैं। ये एक नॉन यूनियनाइज्ड प्लांट है। ये है इस प्लांट का बेटर एरियल व्यू, जिसमें राइट हैंड साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसपे सन का लोगो है, जो कांच की बिल्डिंग दिख रही है आपको बहुत कॉर्नर में नीचे की तरफ, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और बाकी ब्लॉक A1, A2 ये नॉन स्टेराइल के ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक B, C, D, E, H, I और F ये स्टेराइल के ब्लॉक्स हैं। स्टेराइल का मतलब होता है इंजेक्शंस बनाना, और नॉन स्टेराइल मतलब टैबलेट्स बनाना। ये जो आप देख रहे हैं पीछे की जितनी जमीन आपको दिख रही है जो प्लांट के नजदीक में है, ये सारी हमारे सन फार्मा की है, टोटल 28 एकर्स। HR स्ट्रक्चर पे आते हैं। मेरे बॉस हैं मिस्टर कौशिक चौंदर, जो रीजनल हेड HR है, जिनके पास 7 इंडिया के प्लांट्स और 1 मलेशिया का प्लांट्स आता है। मैं उनको रिपोर्ट करता हूं, और मैं 2 प्लांट हेड्स मिस्टर प्रदीप्ता कुमार स्वेन और मिस्टर विराम शाह को रिपोर्ट करता हूं, जो स्टेराइल और नॉन स्टेराइल को हेड करते हैं। मेरी टीम में 4 वर्टिकल्स हैं, यानी HR डिपार्टमेंट में ये नॉन यूनियनाइज्ड प्लांट है, मैंने आपको बताया, इसमें कोई यूनियन नहीं है और काफ़ी अच्छा शांतिपूर्ण माहौल है। और गुजरात के ज़्यादातर प्लांट्स में अगर यूनियन होती भी है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और वो हमेशा ही एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, जो गुजरात का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड यानी कर्नल राजीव कुमार सिन्हा से शुरू करूंगा। कर्नल राजीव कुमार सिन्हा इज एन एक्स आर्मी कर्नल। ही हेड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। He heads administration and security plus government licensing. गवर्नमेंट का जो भी पुलिस लाइजनिंग होती है वो सारा कर्नल सिन्हा करते हैं। उनकी टीम में मिस्टर तुषार सोलंकी हैं, जो कैंटीन और ट्रांसपोर्ट देखते हैं, और वर्डाइन हैं जो फ्रंट ऑफिस और हॉस्पिटैलिटी देखती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इट इज़ US एक्सपोर्ट प्लांट। कहने का मतलब है कि जो भी दवाइयाँ यहाँ बनती हैं इस प्लांट में मेजॉरिटी एक्सपोर्ट US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाती हैं। इसका मतलब है कि मेरी जो टीम है, जो लेफ्ट हैंड जो टीम है कर्नल के साथ, वो टीम कांस्टेंट अलर्ट पे रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर 2 से 3 महीने हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई हमारा अफसर हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, US FDA हो, ये हमारे यहाँ ऑडिट करते हैं, और हमारी साइट को अपकीप रखने की जो पूरी जिम्मेदारी है इन टर्म्स ऑफ द हाउसकीपिंग, द स्क्रैप यार्ड और सारी चीज़ें जो फैसिलिटी से बिलोंग करती हैं, यानी गेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारा ये वर्टिकल का। उसके बाद आते हैं मिस मोनिका कौशल पे। मिस मोनिका कौशल is there from last 5 years. Colonel Sinha is there from more than 8 years. Verdain is from more than 11 years, and Tushar is from here with more than 3 years. Monica Kaushal head the talent management. Talent management का सीधा मतलब है एम्प्लॉइज को एंगेज रखना। एंगेज रखने का मतलब है उनको ट्रेनिंग्स, उनका लाइफ साइकिल डेवलपमेंट, उनका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उनकी ऑनबोर्डिंग, ये सारी चीज़ों की ध्यान रखना। यानी रिक्रूटमेंट टीम क्या करती है कि एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, उसको ऑफर रिलीज करती है। ऑफर रिलीज करने के बाद उनके सारे पेपर्स वो मोनिका की टीम मेंबर्स रिति मुखर्जी को देते हैं, जो ऑनबोर्डिंग देखती हैं। तो वहाँ से उनका कनेक्ट शुरू होता है। बिफोर ज्वाइनिंग जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो जो चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल उन्हें ये बताना कि आप कब यहाँ पहुँचोगे, आपका रहने का,
आपका आने का, आपके सारी चीजें जो आपको चाहिए, जैसे किसी के बच्चे हैं तो उनके एडमिशन्स के लिए कोऑर्डिनेशन, उनके घर के लिए कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें कोऑर्डिनेट करना और उनको कंफर्टेबल करना, उनको ये फील कराना कि यस यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर टीम एंड यू आर कमिंग टू अ प्लेस वेयर यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ये है काम टैलेंट मैनेजमेंट का, ऑनबोर्डिंग का। उनके साथ अंकिता राधाकृष्णन हैं जो सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट करती हैं, सारे ट्रेनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, सारे डिपार्टमेंट हेड्स के साथ कोऑर्डिनेशन, और सारी ट्रेनिंग्स को डिलीवर करने के बाद उसका फीडबैक, ऑनलाइन फीडबैक, ऑफलाइन फीडबैक, उसका डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा पार्ट अंकिता राधाकृष्णन देखती हैं। आते हैं राइट हैंड साइड में मिस्टर शैलेश लिंबाचिया की तरफ, वो टैलेंट एक्विजिशन देखते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो वी हैव मोर देन 2300 ऑन रोल एम्प्लॉइज। 2300 ऑन रोल एम्प्लॉइज अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर का डेटा अगर मैं बात करूं तो वी हैव हायर्ड 320 एम्प्लॉइज। 320 एम्प्लॉइज की हायरिंग करने के लिए आपको कम से कम 3200 प्रोफाइल्स को स्कैन करना पड़ेगा। 3200 प्रोफाइल्स स्कैन करके उनको वेरियस राउंड ऑफ इंटरव्यू से थ्रू करते हुए आपको उनको लेके आना पड़ेगा उस स्टेज तक जब आप ऑफर करते हैं। मिस्टर स्वप्नेश लोरिया जो शैलेश की टीम में है, ये मोर देन 5 years से सन फार्मा के साथ जुड़े हैं एंड ही इज वन ऑफ द वेरी गुड रिक्रूटर्स। तो ये कनेक्ट रखना कि इंडस्ट्री में इस पोजीशन पे कौन काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में कौन काम कर रहा है, क्वालिटी में कौन काम कर रहा है, प्रोडक्शन में कौन काम कर रहा है, इंजीनियरिंग में कौन काम कर रहा है, उसकी मैपिंग करके रखना, उसके बारे में जानकारी रखना। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तब भी उनके साथ रिलेशन बनाए रखना, उनको बहुत पोलाइटली ये कहना कि सर इस बार आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ है, we will try to get some other profile। तो उस तरह से अपनी कनेक्ट बना के रखना, वहां से अपनी ब्रांड इमेज को बिल्डअप करना, ये मेलविन और स्वप्नेश का काम है। उनके साथ और एक लड़का है विनीत जो हमारे ऑफ रोड रिक्रूटमेंट, ट्रेनी अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट में सपोर्ट करता है। और 300 प्लस की रिक्रूटमेंट होती है, प्लस देयर आर अप्रेंटिसेस, देयर आर नीम ट्रेनिंग्स हु कम इन दिस प्रीमाइसेस। तो उन सभी का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फेयर सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन और सेटिस्फैक्टरी ऑफर क्लोजर, ये इस टीम का काम है। उसके बाद आते हैं मिस्टर भौमिक भट्ट पे जो HR ऑपरेशंस को हेड करते हैं। HR ऑपरेशंस अगर मैं बेसिक बात कहूं तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये टीम वो टीम है जिसका काम रिक्रूटमेंट हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गया, ऑनबोर्डिंग से लेके एग्जिट और एग्जिट के बाद तक, यानी उनके प्रोविडेंट फंड, उनके ग्रेच्युटी, उनके क्लेम सेटलमेंट, उनका फुल एंड फाइनल, उनका पूरा जो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल है, किसी का अटेंडेंस को, इसको अटेंडेंस का कार्ड इशू करना, ID कार्ड इशू करना, उनको सारे लॉगिन्स बताना, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग करवाना, एम्प्लॉयज़ को अवेयर करवाना। एम्प्लॉयज़ नए हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे ऑपरेट करना है, तो वो सिस्टम को लॉक कर देंगे। तो पेशेंटली उनको सुनना, उनको गाइड करके उनको सारी चीज़ों से अवेयर करना, प्लस उनका एवरी मंथ पेरोल रन करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को रन करना, उनके PIP यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान को रन करना। अगर कोई लिटिगेशन आता है, अगर कोई केस आता है तो उसको हैंडल करना, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, ये सारे काम जो है ये HR ऑपरेशंस करता है, जिसको पहले हम पर्सनल विभाग कहा करते थे। और HR की जो बेस है वो हमेशा पर्सनल विभाग से आती है। तो ये HR ऑपरेशंस की टीम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है, क्योंकि उनके पास पूरे डेटाबेस रहते हैं,
सैलरी रिलेटेड डेटा रहता है जो कॉन्फिडेंशियल होता है, प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, टर्मिनेशन होता है, इनडिसिप्लिन केस होता है तो उनको रिजाइन करवाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी चेंज होती है तो आईआर इश्यूज को हैंडल करना, ये इंश्योर करना कि कुछ भी हो जाए आईआर इशू ना हो, ये सारी चीजें देखना, ये एचआर ऑपरेशंस का काम। सन फार्मा हलोल के बारे में और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और जनरल शिफ्ट, हम 4 शिफ्ट में ऑपरेट करते हैं जिसके टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखेंगे 20 मिनट का ओवरलैप है और ये ओवरलैप एक्चुअल में 35 मिनट्स का होता है, क्योंकि फार्मा इज अ बैच एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि अगर आपका प्रोसेस चल रहा है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको हैंड ओवर टेक ओवर वहीं लेना पड़ेगा जहां पे आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों ने बसेस प्रोवाइड की हैं फ्रॉम बड़ौदा, हालोल, कालोल, छोटा उदयपुर, सभी जगह से बसेस हमने प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयज़ के लिए। वो अपनी बसेस से आते हैं और कार्ड एक बार टन स्टाइल में पंच होता है, देन उनके डिपार्टमेंट में कार्ड पंच होता है, उसके बाद वो अपनी गाउनिंग करते हैं, क्योंकि फार्मा में डबल गाउनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग किसी फार्मा कंपनी में गए हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो कन्फेक्शनरीज में, जैसे कि मैं फेरेरो में था पहले, फेरेरो में हम सिर्फ एक ओवरकोट पहन के अंदर जा सकते थे, लेकिन फार्मा में अंदर जाने के लिए आपको टोटल ओवरऑल पहनना पड़ता है, शूज कवर पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है, कई जगहों पे आप अलाउड नहीं होते और कई जगह पे आपको ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है। और 8 घंटे में आपको अगर वॉशरूम भी जाना है, अगर आप शॉप फ्लोर पे हैं तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, यूज योर वॉशरूम, अगेन सैनिटाइज योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू गो इनसाइड। क्योंकि जो दवाई आप खाते हैं वो इसी विश्वास के साथ खाते हैं कि ये दवाई मुझे ठीक करेगी, और हर एक गोली, भले वो 35 रुपए की गोली हो या 4.5 लाख का एक वाइल हो, सभी में आपको उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट मिले। और क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है तो आप बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते, 1 का 1.1 या 1.2 भी नहीं कर सकते फॉर योर फॉर्मूला, फॉर योर प्रोसेसेस, फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, जिम्मेदारी से काम करना है। तो 35 मिनट्स is a time that they take for a proper understanding of what's happening, और उसके बाद उन्हें उसको कैसे आगे ले जाना है, राइट। आप 3 बार तक लेट आ सकते हैं 10 मिनट, उसके बाद जब आप आते हैं तो आपका हाफ डे सैलरी कटता है। ये हमारे लीव्स का एक लेखा जोखा है। प्रिविलेज लीव्स जिसको हम बोलते हैं 22 डेज, जिसको हम 90 डेज तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसके बाद वो एनकैश हो जाती है। कैजुअल लीव्स 7 डेज होती है, सिक लीव 7 डेज, मैटरनिटी लीव्स फीमेल एम्प्लॉयज के लिए 26 वीक, उसमें एक मिस कैरेज लीव हमने नहीं लिखा है, वो भी हम 6 वीक्स की देते हैं। उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज होते हैं 8 या 9 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ईयर। ये अर्नड लीव्स हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास लीव नहीं होती है, आप उसको अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर में आप उसको यूज कर सकते हैं। जो लीव पॉलिसीज है इसको आपको ज़्यादा यू डोंट हैव मतलब आई डोंट नीड टू मतलब यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ड्रेसिंग गाइडलाइंस, जैसा मैंने कहा कि आपको सही तरह से कपड़े पहन के आने हैं, आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, आपकी शेव बड़ी नहीं हो सकती, यू कैनॉट वेयर राखीज, यू कैनॉट वेयर अ बैंड, you cannot consume tobacco, you cannot consume anything which is objectionable. अगर आपके पास टोबैको का एक पाउच मिलता है तो you are liable to be getting a warning letter, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। और स्मार्ट कैजुअल्स पहनना ज़रूरी है, स्मार्ट कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप शॉप फ्लोर पे पूरी गाउनिंग करके ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप प्रीमाइसिस में हैं तो यू हैव टू
be best to the situation. हमारे पास मैंने पहले भी कहा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मेडिक्लेम एंड ग्रुप हॉस्पिटलाइजेशन है, कैंटीन अवेलेबल है। हमारे पास 6 कैंटीन्स हैं, एक लंच रूम है, 6 कैंटीन हैं। मैरिज गिफ्ट हम देते हैं वॉच प्लस वाउचर। हमारे सन स्टार अवार्ड्स होते हैं और लर्निंग इंटरवेंशंस हमारे बहुत सारे होते हैं। लॉन्ग सर्विस अवार्ड हमारे यहाँ पर 25 इयर्स पे मिलता है। लॉन्ग सर्विस अवार्ड 25 इयर्स के बाद मिस्टर दिलीप सांघवी अपने हाथों से खुद देते हैं 10 ग्राम गोल्ड कॉइन। और ये जो फंक्शन होता है ये दिलीप सांघवी पर्सनली इनवाइट करते हैं एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय और उसकी फैमिली बॉम्बे जाते हैं और वहाँ पर पूरे दिन मिस्टर दिलीप सांघवी और उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये अवार्ड उनको दिया जाता है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, ये टेक्नीशियन से लेकर 3,75,000 और 17,75,000 से लेकर 1,20,00,000 तक का होता है और डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड। ये सारे ग्रेड्स हैं हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं। टेक्नीशियन G12, 13, 10, 11, 8, 9। एक विसल ब्लोअर पॉलिसी भी है हमारे पास कि अगर आप देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो आप एनोनिमस मेल डाल सकते हैं इस मेल आईडी पर और ईमेल भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके उसको पुटअप कर सकते हैं और एक कमिटी जो डायरेक्ट हमारे एमडी को रिपोर्ट करती है वो आपको रिपोर्ट करती है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम सो दैट यू गेट जस्टिस इफ एनीथिंग हैज बीन डन रॉन्ग। इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा जिसको हम ATM बोलते हैं। ATM का मतलब होता है ऑल टाइम मित्र, जो ज्वाइनिंग के समय आपको अलॉट किए जाते हैं। जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उसी डिपार्टमेंट के, उसी ब्लॉक के, वो आपके बडी बनते हैं और आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें जो होती हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं। ये एक बड़ी प्रोग्राम है। एक छोटी सी बुकलेट हम देते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को जिसको न्यू ज्वाइनिंग हैंडबुक कहा जाता है। इसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेल आईडीज, सारे एड्रेसेस सब कुछ दिया जाता है सो दैट अ न्यू ज्वाइनर कैन यूटिलाइज इट फॉर बेटर फैसिलिटेशन। क्योंकि हो सकता है वो बड़ौदा के लिए, गुजरात के लिए नए हों, तो सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। एक 15 डेज फीडबैक प्रोग्राम है जिसको हम स्पर्श कहते हैं। और आफ्टर 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग हमारा एक कॉफ़ी विद साइट लीडरशिप होता है। इसमें सारे साइट लीडर्स आते हैं, अपने न्यू ज्वाइनर्स के साथ कॉफ़ी पीते हैं। बेसिकली ये सेशन होता है ये जानने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आर यू कंफर्टेबल? आप ठीक ठाक सेटल हो गए हैं? आपका कोई क्लेम अटका हुआ है? कोई ज्वाइनिंग कमिटमेंट नहीं हो रहा है? कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा है? किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लीडरशिप टीम डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट करेगी और हम जो उनका क्वेरी होगा उसको उसी तरह से रिजॉल्व करेंगे। और उसकी एक MIS बनाई जाती है जिससे हम उनको रिवर्ट करते हैं विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। नो योर कंपनी करके एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जो क्वार्टरली होता है। इसमें हम अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, सारे इनिशिएटिव्स के बारे में भी उनको बताते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे सनस्टार, मैत्री, ये कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। हमारा एक सनफेस्ट होता है जो एनुअल फैमिली गेट टुगेदर प्रोग्राम होता है। मंथली बर्थडे सेलिब्रेशंस हमारे होते रहते हैं। आइडियाथॉन, आइडिया जनरेशन का एक प्रोग्राम है। पॉलिटिक्स सर्कल्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेवल प्लस नेशनल लेवल पे हम अपनी टीमों को भेजते हैं। पॉलिटिक्स सर्कल्स बेसिकली बनाए जाते हैं सो दैट यू
improve your processes. You learn Kaizen, 5S, all other things. You implement it in your workplace. You save cost. You learn many things, and you move ahead as a team. So तो कुछ गैस पे रखते हैं. ज्ञान सेतु हमारा एक इनिशिएटिव है जो नॉलेज शेयरिंग का है, और हमारे यहाँ पर एक पहले इनिशिएटिव था जिसको हम एमटेक प्रोग्राम भी हम आदित्य बिरला का जो बिट्स पिलानी है उसके साथ मिलकर अपने एम्प्लॉयज के लिए करते थे, जो अभी खत्म हुआ है. नेक्स्ट बैच माइट स्टार्ट इन द नेक्स्ट ईयर. ये हमारा बेसिक एप्रिशिएशन है. थैंक यू कार्ड. थैंक यू कार्ड कोई भी किसी को भी कभी भी दे सकता है. और एचआर में थैंक यू और ये गुड जॉब डन, ये दो कार्ड्स मैंने सन फार्मा हलोल ज्वाइन किया सितंबर लास्ट ईयर. उसके पहले मैं और एक प्लांट में था जो सन फार्मा का छोटा प्लांट है. तो मैं जब यहाँ आया तब मैंने ये देखा कि एचआर को कोई भी अप्रिशिएट करने का फोरम नहीं है. मेरी टीम में क्योंकि 4 वर्टिकल हैं, 4 अलग अलग दिशा में लोग जा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने लिए आधा घंटा निकालें. और आधा घंटा ऑन अ सैटरडे 1 o'clock हम लोग सब इकट्ठा होते हैं. मेरी टीम में टोटल 24 टीम मेंबर्स हैं जो ऑन रोल ऑफ रोल मिलाकर हैं. हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इस वीक में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या हमने गलतियां करी, क्या हमें सीखना है, उसको हम डिस्कस करते हैं. और उसके बाद हम अपने टीम मेंबर्स को ये कार्ड्स देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि भाई यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब. तो ये जो है आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग. क्योंकि थैंक यू कार्ड ये सिर्फ एक थैंक यू कार्ड नहीं है, ये एक अप्रिसिएशन है और अप्रिसिएशन हर एक को पसंद होता है. ये हमारे सेलिब्रेशन के फोटोग्राफ हैं. क्योंकि हम गुजरात में हैं तो नवरात्रि के बिना आप चल नहीं सकते. नवरात्रि फेस्टिवल में बेस्ट ड्रेस, ये वो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं छोटे छोटे. ये हमारे सन स्टार का एक पिक्चर है जिसमें हम लोग फैमिलीज को बुलाते हैं और एम्प्लॉयज़ को फेलिसिटेट करते हैं. ये क्वार्टरली प्रोग्राम होता है. हेल्थ टॉक सेशंस होते हैं. जिस गाउनिंग की मैं बात कर रहा था वो गाउनिंग में अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, जेंट्स बैठे हुए हैं. ये हमारा बेसिक गाउन है जिसमें हम लोग अंदर काम करते हैं. और हेल्थ टॉक हमारा हर महीने होता है. हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो शॉप फ्लोर पे जाते हैं, यानी कि अंदर जाते हैं प्लांट में, और ऐसे अवेयरनेस सेशंस वो ऑर्गेनाइज करते हैं. अलग अलग टॉपिक होते हैं फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट. CSR एक्टिविटीज आपको पता होगा, एज पर लॉ 2% ऑफ योर प्रॉफिट हैज टू गो फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको सन फार्मा बहुत अच्छे से निभाता है. ये जो फर्स्ट फोटो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में दिख रही है, ये हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट है जो गांव में जाती है एक डेजिग्नेटेड दिन पे. वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर, उसके 2 नर्स होते हैं जो इनको चेकअप करते हैं, दवाइयाँ देते हैं. ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. आई चेकअप होता है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. कई जगहों पे हमने गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट बना के दिया है. स्कूल्स जो बिल्डिंग्स गिर गई थी, खराब हो गई थी, उन सभी को नया बना के दिया है. एंड सन फार्मा इज वेरी एक्टिव इन दैट. ये देखिए आप, जो पेवर ब्लॉक्स लगाना या स्कूल को बनाना या उनका शेड बनाना, बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन, ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग. तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने पास से दिए हुए हैं. मैंने कुछ 4 मिनट ओवरशूट किया है अपने स्टिपुलेटेड टाइम से जो मैंने अपने आप को दिया था. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम यू. Thank you, sir, for such a wonderful presentation.
So now, dear students, now over to you. Please ask any question which you're feeling the expert sir hai. He will go for sharing in regard to his experience and all. You can go for raising the hands. You can or go for typing in the chat box. So till that time, just I'm putting one question in front of you. What is the exact difference between personal management and HR management? पर्सनल मैनेजमेंट का सीधा मतलब है, अगर मैं आपको शकुंतला विल एग्री विथ मी बिकॉज हम लोग एमएनसीज में काम कर चुके हैं. आई हैव वर्कड इन इटालियन, अमेरिकन एंड रशियन कंपनीज. तो वहाँ पर जो पर्सनल विभाग है वो आउटसोर्स्ड होता है. कहने का मतलब है कि आप जो कार्ड पंच करते हैं, जिससे आपकी अटेंडेंस जनरेट होती है, अटेंडेंस जनरेट होने से जो आपकी सैलरी बनती है, आपकी लीव एंटाइटलमेंट्स, आपके लोन्स, आपका बेनिफिट यानी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, वो सारी चीज़ें जो लोग देखते हैं, दैट इज द पर्सनल विभाग. बेसिक यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जो अवेलेबल होनी ही चाहिए, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते. आपके लेबर पेमेंट्स हो गए, आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हमें देना चाहिए और दिया जाता है इसके ऊपर. तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हो गए, आपके लीगल ऑब्लिगेशंस, जैसे आपको प्रोविडेंट फंड एक समय में भरना है, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बेसिक है, जिनके ऊपर सारी अदर एक्टिविटीज एचआर की ड्राइव करती है. और ये है आपका पर्सनल विभाग. ये बेस है हर कंपनी के एचआर का. अगर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, अगर आपका सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं या जो आपका फाइलिंग है, अगर वो बेसिक सही नहीं है तो आप एचआर में और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक ही आपका क्लियर नहीं है. तो जो बेसिक है वो पर्सनल विभाग है. उसके बाद जब आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल की बात करते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपकी एचआर को बिलोंग करती हैं, ना कि पर्सनल विभाग को. यानी एम्प्लॉय को कैसे अपने साथ पकड़ के रखना, कैसे उनको बेस्ट फैसिलिटी देना, कैसे उनको कनेक्ट करके रखना, ये आता है ह्यूमन रिसोर्स. सर एक थोड़ा एक डाउट ऐसा है कि whenever we go for explaining HR management, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जस्ट रीनेमिंग का प्रोसेस हुआ है. HR इज नथिंग बट अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. उसका रैपर वगैरह कुछ चेंज हुआ है, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन कंपनीज की बात करते हैं, जैसे कि मैं रिलायंस में था. रिलायंस में बहुत ही बेसिक फंक्शन हुआ करता था जिसको हम पर्सनल विभाग ही बोलते थे जब मैं ज्वाइन हुआ, राइट. तो क्योंकि ओनर ड्रिवन कंपनी थी, मेजॉरिटी जो कंपनियां आज की तारीख में हैं, जो बड़ी कंपनी हैं, वो कहीं ना कहीं ओनर ड्रिवन शुरू हुई थी. और जैसा जिसका एक्सपीरियंस, जैसे जिसकी नीड आती गई, वैसे वो बढ़ती गई. एक्सेप्ट टाटाज. अगर हम बेंचमार्किंग अगर आपको कभी भी करनी हो तो सिर्फ टाटाज की करनी चाहिए. एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इनफैक्ट वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज दैट आई वुड लाइक टू वर्क इज टाटाज. क्योंकि वहाँ पे एचआर प्रैक्टिसेस जो है वो एक लेवल की होती है. और अगर हम ये कहते हैं कि ओल्ड मतलब ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, तो ये हमारा थॉट प्रोसेस दिखाता है. हम अगर ये कहते हैं कि ट्रेनिंग से क्या फर्क पड़ेगा या एम्प्लॉय रिटेंशन क्या करना है, तो बस नाटक है, थोड़ा बहुत आई वॉश है. तो दैट शोज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर थॉट प्रोसेस. और आज की तारीख में इफ यू टॉक अबाउट कोरोना एज अ पेंडेमिक, तो आज की तारीख में द बेस्ट टीम दैट आई हैव इज माय टीम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि
आज की तारीख में सॉरी टू से, लेकिन भाई भाई का और फैमिली मेंबर्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर किसी को गलती से भी कोरोना हो जाता है तो लोग भागते हैं, लोग एंटरटेन नहीं करते। और हमारे टीम मेंबर्स रात के 2-2 बजे तक जग के उनका हॉस्पिटलाइजेशन, उनके फैमिली की वेलफेयर, उनके लिए कहीं से भी गाड़ी अरेंज करना, हॉस्पिटलाइजेशन करना, बेड्स मिलना मुश्किल है आज की तारीख में, उसके लिए फाइट करना, रिलेशनशिप बना के उनके लिए बेड्स अरेंज करना, सारी चीजें हमारी टीम कर रही है। और जो हमारी टीम आज कर रही है शायद उन्होंने पहले कभी किसी के लिए इतना नहीं किया होगा, लेकिन पैंडेमिक ने ये रियलाइज करा दिया है कि पर्सनल विभाग से बढ़कर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या होता है। और आज की तारीख में मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आज मेरे 4100 लोग आपको बता पाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। उस रिसोर्स को सच में संभाल के रखना, उसका ध्यान रखना, उसकी फैमिली जब उसके लिए नहीं खड़ी होती, हम खड़े होते हैं, दैट इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। एंड दैट इज वेयर वी नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ आवर ओन सेल्फ, कि हाउ डू आई कीप रिलेशंस विथ माय पीपल। रूल रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन कहने का भी तरीका होना चाहिए। तेरे को लोन नहीं मिलेगा, जा भाग यहाँ से, भाई आप एलिजिबल नहीं है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, मैं आपको और कुछ मदद करने की कोशिश करूँ। दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ पॉलिसी। रिलेशंस नहीं रखोगे तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल एज एन एचआर प्रोफेशनल। So sir, can we say like personnel management is based on hire and fire, and HR management is based on give love, get love? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। देखिए, एचआर पर्सनल विभाग जो है वो नहीं होगा तो एचआर खड़ा नहीं रह पाएगा। Yeah. इट इज अ बेस है वो, बेयर मिनिमम क्वालिटी। अगर आप एक ग्रेजुएट कोई इंसान है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्रेजुएट है तो इतना तो उसको पता होगा। कॉमर्स का ग्रेजुएट है तो कॉमर्स के ग्रेजुएट को आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको डेबिट क्रेडिट पता होगा। अगर साइंस का ग्रेजुएट है तो आपको ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसको H2SO4 का फॉर्मूला तो आता होगा। मेरे को एक ही फॉर्मूला आता है साइंस में, इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, मैं साइंस में थोड़ा सा पैदल हूँ। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी एक है तो इसका मतलब है कि यू आर एट अ सर्टेन लेवल। और जब आप सैलरी मिलना, बस आ रही है कि नहीं, खाना कैंटीन में मिल रहा है कि नहीं, उसके ऊपर जाके जब बात करेंगे तब आप उस इंसान की बात करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ। एंड दैट एचआर कम्स इनटू पिक्चर। Okay, thank you. Onkar Shinde. Onkar, you can ask the question. Hello, sir. I'm Omkar. Can you please elaborate the labor funding process? Labor funding, or maybe you're talking about employee compensation. Yes, yes, Huh? yes. Okay, sir, he is asking about the compensation or maybe the pay structure which we are going to offer to the employees, how they are decided, which are the different legislation which are to be followed. देखिए, जो बेसिक लॉ है वो आपको पता है। वी आर गवर्न्ड बाय द मिनिमम कंपनसेशन, द मिनिमम वेजेस एंड बोनस एक्ट, तो उसको हम फॉलो करते हैं। स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड की कैटेगरी होती है। ये सब हम बात कर रहे हैं फॉर आवर बेसिक नॉन स्टाफ एंड नॉन टेक्नीशियन एम्प्लॉइज। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर की, तो वी हैव अ बेंचमार्किंग स्ट्रक्चर। हर कंपनी का अपना एक बेंचमार्किंग स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि अगर आप एक बी फार्म को हायर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बी फार्म और एम फार्म या MSc माइक्रो को हम हायर करते हैं, तो अगर आप एक बी फार्म फ्रेशर को लेते हैं तो आप उसको कितना कंपनसेशन ऑफर करते हैं, और अगर आप किसी प्रीमियर कॉलेज से लेते हैं तो आप उसको कितना कंपनसेशन ऑफर करते हैं। ये हमने बेंचमार्किंग स्टडी की हुई है अपने नियर बाय इंडस्ट्रीज में, प्लस फार्मा का अपना एक बेंचमार्किंग होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, हम फॉलो करते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक बेंचमार्क होता है, और उस बेंचमार्क का एक रीजन होता है कि उस लेवल के नीचे आपको अच्छा स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलेगा। और फ्रेशर्स को हम आज की तारीख में अप्रेंटिस में भी लेते हैं, तो अप्रेंटिस का भी एक
लेवल होता है उसका कंपनसेशन डिसाइडेड होता है बाय द बोर्ड एंड वी आल्सो हैव इंटरनल बेंचमार्क राइट फ्रॉम 1,80,000 से लेके डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस हम लोग कंपनसेशन देते हैं. Okay. Thank you, sir. Deepali Kori. So, how to maintain employee personal record? Sir, her question is that how to maintain the employee personnel records. सबसे बेसिक, सबसे मगजमारी वाला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो. सबसे पहले अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाऊं तो जब मैंने दिलशॉज डेयरी फूड्स ज्वाइन किया था तो वहाँ पे एम्प्लॉयज की डिटेल्स लेने का जो फॉर्मेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता था. वो उसमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन थी और एक प्रोविडेंट फंड का फॉर्म था और एक ग्रेचुइटी का फॉर्म था. तो जब आप जाते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि हम सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं. प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये हर एक में बेसिक होता है. फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ये बेसिक होती हैं. अगर आप एमएनसीज में जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है. यानी जब मैंने एबट ज्वाइन किया तो मेरे 16 इयर्स का वेरिफिकेशन हुआ था. तो उसमें इतनी डिटेलिंग आपको पूछनी चाहिए कि इन केस आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े जो डेटाबेस में हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. जब मैं गया तब वहाँ डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो मैंने कुछ कॉलेज के बच्चे, आप लोग जैसे जो फ्रेशर्स थे, उन सबको इकट्ठा किया, उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोग कॉम्पनसेशन नहीं देते थे. फाइलें एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको मैंने मराठी में कन्वर्ट करवाया, उस फॉर्मेट को हिंदी में कन्वर्ट करवाया, इंग्लिश में ऑलरेडी बना हुआ था. डेटा कलेक्शन किया शॉप फ्लोर पे जाके, क्योंकि मैं यूनियनाइज प्लांट में था, 4 यूनियन थी उधर, तो यूनियन वाले अपना डेटा नहीं देते थे. वहां से शुरू करते हुए हमने बेसिक डेटाबेस बनाया. बेसिक डेटाबेस में आप जो सोच सकते हैं, कई पुराने एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी पर्सनल फाइल्स नहीं होती हैं, कई लोगों के प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं. सबसे बेसिक आपको ध्यान देना है कि कंप्लायंसेस के तौर पे आपके पास सारी चीजें है कि नहीं. पॉइंट नंबर 1, आपका प्रोविडेंट फंड का नॉमिनेशन है, ग्रेचुइटी का नॉमिनेशन है, आपका डेथ बेनोमिनल फंड है तो उसका नॉमिनेशन है कि नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स कैप्चर हुए हैं या नहीं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस वाइफ या हस्बैंड के साथ अभी वो रह रहे हैं वो उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाइफ हो सकती हैं, उनका नॉमिनेशन पुराना हो सकता है. ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है. तो आपको ये सारी चीज़ें कैप्चर करना और टाइमली उसको हर बार अपडेट करना. जैसे कोई अनमैरिड है, उसने मैरिज करी है तो उसका रिकॉर्ड अपडेट करना, उसके स्पाउस का रिकॉर्ड अपडेट करना, उसके प्रोविडेंट फंड का रिकॉर्ड फाइल में अपडेट करना, उसको सही अथॉरिटीज तक पहुंचाना. ये बेसिक काम आपके हैं और यहीं से आपका डेटाबेस शुरू होता है. अगर आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं जैसे कि SAP है, सक्सेस फैक्टर है, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्लिक ऑफ द बटन में आपको डेटा मिल जाएगा. लेकिन उस डेटा को ऑन ग्राउंड कलेक्ट करना, उसको सही तरह से रखना, उसकी फाइलिंग सही जगह हो. फायर प्रूफ कैबिनेट अगर आपको मिलता है, दैट इज द बेस्ट. फायर प्रूफ कैबिनेट्स जनरली कंपनीज फाइनेंस को देती हैं, लेकिन HR क्योंकि फाइट नहीं करता है तो उनको फायर प्रूफ कैबिनेट्स नहीं मिलते हैं. तो यू हैव टू से दैट पर्सनल रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर आप ये कर सकते हैं कि आज का जो नया युग है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए जो सर्वर में अवेलेबल रहे. और वो मैं दिनशॉज में कर पाया था कि मैं सारी चीजें अपलोड कर देता था और क्लिक ऑफ द बटन में किसी को भी पैन इंडिया में उनके डॉक्यूमेंट्स जो देखने होते थे वहां पे वो ले सकते थे. तो बेटर इज कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो, उसके एक लॉगिन में विथ ऑथराइजेशन रख दो और एक लेवल ऑफ ऑथराइजेशन डिसाइड कर दो कि कौन वो डॉक्यूमेंट देख सकता है. राइट. तो आप एक डेटाबेस बना के सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप हार्ड कॉपीज रखना चाहते हो तो यू शुड हैव वेरी गुड फाइल विथ प्रॉपर स्टेपलिंग, प्रॉपर फोटोग्राफ्स, फैमिली फोटोग्राफ्स. फैमिली फोटोग्राफ ये बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह मिस हो जाता है
क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तब उसकी एक नई फैमिली आ जाती है कॉम्पनसेशन लेने के लिए, और हमने ये फेस किया हुआ है। इसलिए फैमिली फोटोग्राफ्स, उसमें एम्प्लॉय का साइन किया हुआ कि ये मेरी फैमिली है एज ऑन सो एंड सो डेट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप एक दूसरे लीगल बैटल में पड़ जाएंगे। तो एवरी रिकॉर्ड जो भी, अगर मान लीजिए कि मुझे आप मेरे को आप एक वार्निंग लेटर इशू कर रहे हैं, तो वार्निंग लेटर एक्नॉलेज्ड बाय मी दैट आई हैव रिसीव्ड दिस वार्निंग लेटर, इट हैज टू गो इन द फाइल। अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करके उसके फोल्डर में आपको रखना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटाबेस जो आपकी फाइल है, इट्स अ बेसिक ऑफ एवरीथिंग। और फॉर्चुनेटली एचआर वाले उसमें घुसना नहीं चाहते। Okay, sir. Thank you very much. Ganesh Katkar. हेलो सर, मेरा एक डाउट था। नाउ दे जो करंट कोविड-19 पेंडेमिक में इसमें कुछ एम्प्लॉइज एंगेजमेंट पॉलिसी में आपके कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं क्या? मतलब गणेश, बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है पेंडेमिक में। सिलेबस चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बर्थडे मनाते हैं, ट्रेनिंग ऑनलाइन करते हैं, मीटिंग ऑनलाइन करते हैं। जिस तरह हम सब कुछ करते थे वो सब कुछ बदल दिया गया है। एंड वी आर टोटली, मतलब आज की तारीख में हम हर छोटी चीज को हम सीख रहे हैं कि एम्प्लॉय कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में लोगों को जाने नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपको उनको एंगेज करना है, तो कैसे करेंगे। हमने एक हमारा इंग्लिश करके प्रोग्राम था, उसको हमने ऐप बेस्ड प्रोग्राम कर दिया, और आज की तारीख में लोग ऐप बेस्ड ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग मैनेजर के लिए भी हमने इम्प्लीमेंट किया, और ब्लॉक वाइज बर्थडे सेलिब्रेशन किया। मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है जो हम जूम मीटिंग में कर रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ गो टू मीटिंग होता है। तो उसी तरह से एक जगह केक कटता है और सारे ब्लॉक्स में उसका वीडियो चलता है। हम लोगों ने एक नई प्रैक्टिस इवन शुरू करी, सुबह जब एम्प्लॉयज आते हैं जनरल शिफ्ट में, तो गायत्री मंत्र चलता है 15 मिनट तक। पूरा म्यूजिक जो हमारा पीए सिस्टम है, जो बेसिकली सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन हम उसको एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए यूज करते हैं। जब वो आते हैं तो एक बढ़िया सा म्यूजिक बज रहा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जब आते हैं तो उनको एक सॉफ्टवेयर में सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है कि आई एम ओके, देयर आर 10 क्वेश्चंस। वो 10 क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। उसके बाद उनका टेम्परेचर मैपिंग होता है, वो उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, फिर वो हाथ को सैनिटाइज करते हैं, फुट सैनिटाइज करते हैं, हाथ को धोते हैं, फिर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर वो सैनिटाइज करते हैं, फिर कार्ड पंच करते हैं गाउनिंग करने के बाद। तो ये उनके लिए इतना सारा प्रोसेस बढ़ गया है, तो हमने एक म्यूजिक लगा दिया है। 11 बजे हमारा लीडरशिप स्पीच होता है कि कोरोना में रोज एक मोटिवेशन 5 मिनट का कोई एक लीडर आके पीए सिस्टम में बताएगा कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं, उन्होंने क्या नया देखा, क्या उनको करना चाहिए। उसके बाद होता है आधे घंटे बाद बर्थडे बॉयज का, बर्थडे जिनका भी होता है उसके लिए अनाउंसमेंट होता है कि आज गणेश का बर्थडे है, हेमेंद्र का बर्थडे है, चैतन्य का बर्थडे है, प्रियंका का बर्थडे है, और उसके बाद एक छोटा सा बर्थडे सॉन्ग बजता है। ये सारी चीजें हमने इन्वेंट करी है जब से कोरोना शुरू हुआ है। तो बहुत सारी चीजें नई हमें करनी पड़ी है। हम 23 बसें चला रहे थे, अभी हम 74 बसेस चला रहे हैं। कैंटीन में हमने पार्टीशंस रखे हैं, जो छोटे फाइबर पार्टीशंस हैं। कैंटीन में टाइम पहले 11:30 का था, 11 से लेकर 3 बजे तक का कर दिया है। फूड को फ्री कर दिया है, चाय को अनलिमिटेड कर दिया है। बहुत सारी चीजें करनी पड़ी हैं जिससे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहें। हेलो सर, अभी यही जो सवाल है कोविड-19 पैंडेमिक के रिलेटेड ही मेरा, कि अभी क्या-क्या किस प्रकार के चैलेंजेस एचआर मैनेजर के सामने आ रहे हैं as far as this pandemic situation is concerned and the work maintenance of the work environment is concerned. सबसे बेसिक है शो चलाना।
3 शिफ्ट में एम्प्लॉयज को बुलाना, ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख। अगर आप एम्प्लॉय से कनेक्टेड नहीं होंगे, हम लोगों ने जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, टोटल लॉकडाउन था, कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, सारी चीजें बंद थी, सिर्फ हमारी कंपनी चालू थी। गांव के लोग आने देना नहीं चाहते, उनको लगता है कोरोना हमारे कंपनी के थ्रू उनको आ जाएगा, तो गांव गांव जाकर सरपंचों से मिलकर उनको काउंसिल करना, उनको ये बताना कि हम कितने मेजर्स ले रहे हैं, हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब देना। कल को कोई नेता आपको फोन करेगा, ऐसा कराचे नहीं, बंद करा, कोरोना होइल, ये वो फलाना ढिमका, बहुत कुछ करते हैं, उनको शांति से जवाब देना। आपके नंबर हर टॉम डिक एंड हैरी के पास होते हैं, तो आपको कभी भी रात को 2 बजे भी कॉल करते हैं कि साहब पानी खत्म हो गया, गर्म पानी नहीं है, मैं कंपनी में काम कैसे करूं। तो आपका टेम्परामेंट जो है उसको अपने सही जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे सवालों के जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इरिटेट होते हैं लोग, हो सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कूल रख के उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और बेसिक चैलेंज जो मैंने कहा कि अटेंडेंस को कंटिन्यू रखना। फॉर्चुनेटली हमारी अटेंडेंस कभी भी 85% के नीचे नहीं गई है, जबकि हमारी नेबरिंग इंडस्ट्रीज, तो दूसरी फार्मा कंपनीज हैं, 45%, 40%, 30% अटेंडेंस थी। उन लोगों ने सिर्फ इंसेंटिव्स डिक्लेयर किया, दे डिड नॉट वॉक अप टू द पीपल, दे डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। अब कई गांव में हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बस नहीं देते थे, लेकिन पैंडेमिक को देखते हुए कि भाई कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट शूट अप होगी, हमें करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज आए, तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके सारे सवालों के जवाब, उनके सारे सवालों को समझना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा, और तभी आप शो रन कर पाए। द बिगेस्ट चैलेंज इज रनिंग द शो। सेकेंड इज मोटिवेटिंग देम, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में, हमारे कंपनी में भी पॉजिटिव केसेस आए हैं, पॉजिटिव केस आने के बाद एक इतना फियर साइकोसिस आ जाता है कि लोग काम करने आना नहीं चाहते। उनको उस माहौल में मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि हमारे कितने फैसिलिटीज हमने एडिशनल आपके लिए क्रिएट करी हैं, और जेन्युइनली वो उनके लिए करना, तभी वो आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि आज की तारीख में लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जिंदा तो रहूंगा। उस साइकोलॉजी से उनको ऑफिस में लेके आना, उनको ये विश्वास दिलाना कि आपका हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आपके आने जाने का ध्यान रखेंगे, एडिशनल सैनिटाइजेशन हम करेंगे। आज की तारीख में हमने जब शुरू हुआ था, हमने नहीं सोचा था कि हम वॉश बेसिन गेट के बाहर लगाएंगे, गेट पे वॉश बेसिन लगाएंगे। जब सेल्फ डिक्लेरेशन शुरू हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड, तो हमने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है कि रोज अपने एम्प्लॉय एंट्री करें। लेकिन हर चीज में उनके साथ खड़े रह के उनको कन्विंस कराना कि हम आपकी सेफ्टी देखें। आज की तारीख में हम हर एम्प्लॉय का कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, जो एक दिन के बाद की छुट्टी पे होता है और एक दिन बाद आता है, उसका कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। अब ये कार्ड जब हम ब्लॉक करेंगे और कोई भी एम्प्लॉय कार्ड पंच करेगा तो वो इरिटेट होगा। तो एचआर क्या करता है, एचआर रोज गेट पे जाता है, इंक्लूडिंग मैं खुद गेट पे जाता हूँ, उनको मिलता हूँ कि हाँ भाई आप कहाँ गए थे, सर मैं यहाँ गया था, वो था, ये था, ठीक है। उस अगर जेन्युइन लगता है या जेन्युइन नहीं भी लगता है, तब हम उसको ओएचसी भेजते हैं, यानी डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर उनको हेल्थ पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, चेक करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट बना के प्लांट हेड के पास जाता है कि सर ये इस रीजन से छुट्टी पे थे। इस दौरान जो एम्प्लॉय है वो ये सोचता है कि यार मैं तो सबसे लड़के ऑफिस आ रहा हूँ और ये मेरे को अंदर नहीं जाना दे रहे। तो उनको भी बहुत पोलाइटली समझाना पड़ेगा कि देखिए सर, अगर गलती से भी आपको कोई कोरोना का इफेक्ट होगा तो आप पूरे शॉप फ्लोर को कंटेमिनेट करेंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वेट करिए, हम आपको अंदर जाने का पूरा मौका देंगे। एम्प्लॉयज का कोरोना टेस्ट करवाना, उनके फैमिलीज का कोरोना टेस्ट करवाना और उनको सारी चीजों में फैसिलिटेट करना, ये सारी चीजें हम एडिशनली कर रहे हैं सो दैट पीपल फील। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैनेजमेंट ने लिया है वो ये लिया है कि आपको, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको कुछ भी हुआ, कितना भी खर्चा हुआ आपका पैकेज, जैसा मैंने दिखाया आपको प्रेजेंटेशन में, 3 लाख से शुरू होता है, 2.5 लाख से शुरू होता है, लेकिन
आपका 10 लाख भी खर्चा होगा आपकी फैमिली का, तो कंपनी विल बेयर द एंटायर कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। प्लस जो भी आपको होटल में रहना पड़ेगा, सपोज आप एक घर में 4 बैचलर रह रहे हैं, एक को पॉजिटिव आ गया, तो बाकी 3 लोग अगर रह रहे हैं और अगर वो फियर में हैं तो उनको होटल में या गेस्ट हाउस में शिफ्ट करना, सारी चीजें को केटर करना, ये हम लोग हर एक एम्प्लॉय वाइज केस टू केस बेसिस कर रहे हैं, so that the show goes on. Okay, sir. Thank you very much. Sagar More. Yeah, good evening. Yeah, sir. Good morning, sir. My name is Sagar. I have a question. The question is, sir, have you ever faced a worker strike situation or any situation in which employees are disagree with the company policies, they are unsatisfied? In that situation, have you deal with those employees, or have you tackle with that situation? शकुंतला जवाब देना है या मैं दूं? दे दो, आप दे दो। शकुंतला जी उससे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो फेरेरो में काम कर चुके हैं, जो शरद चंद्र जी पवार के रीजन में है। सागर बहुत सारी बोलो हाँ, आप बोलो, आपकी बात मैं बोलिए। ऐड करती हूँ। नहीं आप शुरू करिए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें एम्प्लॉय डिसएग्री होते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है, जैसे अभी हेमेंद्र जी ने बताया कि एग्रीमेंट भी है, जो हमने क्या देने का है क्या नहीं देने का है, यूनियन भी है, तो भी लोग बाकी के जो उनके पॉइंट्स रहते हैं उसके लिए, जैसे स्ट्राइक का उन्होंने बोला, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हमारे करियर में हमने हैंडल की है। तो उसमें जैसे उन्होंने बताया कि आपका रिलेशन अगर अच्छा है और आप अगर ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर काम करते हैं, तो उनको सुनना, मतलब जैसे उन्होंने हेमेंद्र जी ने बताया कि उनका पेन क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो हमें ठीक से समझा कर लेना चाहिए। वो समझने के बाद उसका जो जवाब है वो हमें उनको देना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, अगर एग्रीमेंट भी रहता है, तो जैसे अभी कोविड का एग्रीमेंट में जो भी है, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन में जो भी हमारे लिए सवाल उठे हैं और हमारे लिए जो उनको हैंडल कैसे करना है, उनके डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जैसे उन्होंने बताया केस टू केस बेसिस पे ही करनी पड़ती है। और इसमें हम ऐसा कहेंगे कि आपके जो यूनियन के मेंबर्स है उनके साथ आपका रैपो कैसा है, मैनेजमेंट का पॉलिसी उसके ऊपर डील करने का कैसा है, आपके अथॉरिटी में क्या क्या आता है, ये सब देख के आपको साम दाम दंड भेद ये सब यूज करके वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी पड़ती है। Bhaiya, you can also add into this. शकुंतला ने बहुत ही परफेक्ट बताया, और मैंने एक डेथ केस हैंडल किया था नागपुर में। नागपुर एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पे लोग सिर्फ काम करना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ चाहते हैं। और अगर आपके पास 2 एम्प्लॉय यूनियंस और 2 कॉन्ट्रैक्टर यूनियंस हो और आपके 2 प्लांट्स हो, तो आपका जो काम है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है नॉन क्रिएटिव चीजों में, क्योंकि वो हर चीज में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि आप इरिटेट होकर रिएक्ट करें। उस समय अपनी पॉलिसी की नॉलेज होना, अपने पॉलिसी की निटिग्रिटीज को पता करना, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना ताकि उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, पॉलिसीज थरो होना बहुत जरूरी है। और उसको जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्पेशली जब आप यूनियनाइज एनवायरनमेंट में है, तो यू हैव टू गो इन अ वेरी वेरी कॉशियस मैनर। कॉशियस का मतलब डरना नहीं होता। 45 मिनट तक सारे यूनियन वाले मेरे सामने खड़े थे और हमने एक बंदे को सस्पेंड किया था तो किया था, सस्पेंड किया तो किया। अब आपको जो करना है कर लो, लेकिन आपका फेस, आपकी बॉडी, आपके एक्सप्रेशंस ये नहीं बता सकते। यू हैव टू बी वेरी कूल, काम एंड कंपोज्ड।
You have to only talk what is required. कि देखिए सर ऐसा है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के सो एंड सो क्लॉज के हिसाब से ये हुआ है, जिसकी वजह से हमने इंटरनल इंक्वायरी करी थी। इंटरनल इंक्वायरी की फाइंडिंग्स ये हैं, हमने उनको सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी किया है सो दैट हम इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली कर सकें। हम आपको भी पूरा मौका देंगे उसको रिप्रेजेंट करने का, पर अगर आपने गुस्से में उसको बोल दिया कि तू चुप बैठ, तेरे को कुछ समझता नहीं है, तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा समझाते हैं, ऐसा वो एक युनियन वाला डायलॉग मारेगा, मी सांगतो तुला काय करायचे, या कंपनीला बार या, तो आपकी गाड़ी के सामने पत्थर वित्थर लेके खड़े हो जाएंगे। जो मेरे साथ हुआ था, गाड़ी के सामने पत्थर डंडा लेके खड़े हो गए थे 1000 लोग। उस समय अगर आपने टेम्परामेंट दिखा दिया, यानी अपने आप को शांत रह के, जैसे अभी आपके सर दिख रहे एकदम कूल काम कंपोज, आप काम कर जाओगे। लेकिन अगर आपने गुस्सा दिखा दिया तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। कभी भी किसी को तू तड़ाक नहीं करना है। जब सिचुएशन हैंडल करने का मतलब है बहुत ठंडे दिमाग से सोच के अपनी पॉलिसीज प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए लीगल फ्रेमवर्क में, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि आपको जितने रूल पता है उससे ज्यादा रूल उनको पता है, और वो आपका एग्जाम लेते रहते हैं कि आपको कितना पता है। तो इसलिए बहुत शांत रहना जरूरी है। सर अगर वहां पे एक से ज्यादा समझो यूनियन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसके साथ वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैकेनिज्म करना चाहिए या निगोशिएशन किसके साथ करना चाहिए इन केस ऑफ वेज एग्रीमेंट्स और एनीथिंग? जिसके पास मेजॉरिटी है। अच्छा, उनको लड़ने दो। वेदर दे हैव टू बी, मतलब वो रिकॉग्निशन का वगैरह कुछ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से उनको सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, वैसा कुछ है? आपको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना है, जिसमें मेजॉरिटी एम्प्लॉइज एग्री करेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। ओके। एक से ज्यादा यूनियन है तो एचआर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप उनको आपस में लड़ा सकते हो। और ये याद रखना है कि वो आपस में लड़के आपके खिलाफ नहीं हो, क्योंकि मेजॉरिटी ईगो इशू होता है। ईगो के अलावा कुछ नहीं होता है, और ईगो मसाज जो ज्यादा करता है वो सक्सेसफुल होता है। और आपको ईगो मसाज नहीं करनी है, आपको अपनी पॉलिसीज के साथ ही जाना है। पॉलिसी से एक बार आपने डिविएशन कर दिया तो वो हर बार उसी एग्जाम्पल को लेके आपको झुकाएंगे। तो वो चीज पे फर्म रहना बहुत जरूरी है। आपको पड़ भी सकती है, आपको मार पिटाई आपके साथ हो सकती है, लेकिन आप तब कूल एंड कंपोज रहना, अपनी सिक्योरिटी बैकअप तैयार करके रखना बहुत जरूरी है। बट यू कांट लूज योर कूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर और एक क्वेश्चन, ये शकुंतला मैम के कलीग है और हमारे एलुमनाई भी है, सागर गावड़े जी, ही इज आल्सो इन दिस मीटिंग। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपके यहाँ पे 4000 प्लस एम्प्लॉइज है, फिर भी आप बोल रहे हैं वहां पे ट्रेड यूनियन है नहीं, और फिर वहां पे ये जो बार्गेनिंग का वगैरह जो मैकेनिज्म है इन केस ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑल, वो कैसे फिर वहां पे हम इनिशिएट कर रहे हैं? कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अपने लोगों को मैनेज करते हैं, और वी गिव देम अ सर्टेन अमाउंट व्हिच इज देयर कमीशन। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो ये चीज़ सोच नहीं सकते, और गुजरात में है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी कि यूनियन बिना काम कैसे होता है, लेकिन यहाँ होता है। वो आप प्रैक्टिकली जब आके देखोगे तब पता चलेगा। और मैंने 14 साल जो काम किया है, कोंकण में किया है, बारामती में किया है, बॉम्बे में किया है, हर नागपुर में किया है, तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे यूनियन ना हो। और गुजरात में मैंने जितनी कंपनियों में काम किया है कहीं भी यूनियन नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर कैसा है। तो नेगोशिएशन की इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे एम्पल एम्प्लॉयमेंट है। जिस जीआईडीसी में मैं काम करता हूँ उसमें एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। जिसको काम करना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
और इसलिए शायद हमारा काम थोड़ा सा आसान है। ओके सर। सागर जी कुछ बोलना है उसके ऊपर? सागर गावड़े जी, No, sir. are you there? Thank you, sir. Okay, okay. Priyanka Davre, please unmute yourself. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन है, प्रमोशन या करियर एडवांसमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? प्रियंका, हर कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है। कुछ फास्ट ट्रैक प्रमोशंस उन लोगों के लिए होते हैं जो एक प्रीमियर कॉलेजेस से होते हैं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, XLRI। इनके लिए इनका रिक्रूटमेंट होता है मैनेजरियल लेवल पे, और उनके हर 2 साल में प्रमोशन का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम हाइपो मैनेजमेंट बोलते हैं, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज मैनेजमेंट। तो उनके लिए सेपरेट प्रोग्राम होता है। बाकी हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज और प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपका IDPs यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, और उसके बेसिस पे हम उनको प्रमोशंस देते हैं। जनरली 3 साल या उससे आगे ही प्रमोशन दिए जा सकते हैं, उसके पहले नहीं दिए जाते। ओके, थैंक यू सर। Chaitanya, please unmute yourself. Okay. Sir, which things we have to follow for transfer of any employee? कहाँ करना है ट्रांसफर, इंटरनल एक्सटर्नल? दोनों में बताइए। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि कई कंपनीज में कॉस्ट सेंटर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो आपको कॉस्ट सेंटर चेंज करना होता है, उसका सिस्टम में रिकॉर्ड चेंज करना होता है, अपडेट करना होता है। और अगर लोकेशन ट्रांसफ़र होता है तो उसकी पॉलिसीज होती हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ट्रांसफ़र पे, वो आपके रिटर्न डाउन होते हैं, या अगर नहीं है तो होने चाहिए बिफोर यू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय। और ये इंश्योर करना कि पेरोल ट्रांसफ़र टाइमली हो जाए, सो दैट एम्प्लॉय को कोई भी ब्रेक ना आए। उनको ट्रांसफ़र असिस्टेंस यानी कि उनको घर वगैरह शिफ्ट करने के लिए सपोर्ट करना, उनको उनके फैमिलीज़ को एडमिशन, अगर उनके बच्चे हैं तो उनको एडमिशन असिस्टेंस देना, उनको घर दिलवाने के लिए हेल्प करना, ये सारी चीज़ें पॉलिसी में होती हैं, ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ में होती हैं। और जैसे फेरेरो में पॉलिसी थी कि अगर आप सब कुछ आपका कंपनी करके देती है एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। कई जगहों पे ये होता है कि आपको खुद पे करना होता है, उसके बाद उसकी पॉलिसी के हिसाब से रिएम्बर्समेंट होता है, तो डिपेंड्स। Just 2 questions we will take, sir. One question which is raised by Navnath Kokre. He is asking about what is the process for giving employee pension. As per law, simple. Okay. लॉ जो कहता है उसमें आप कुछ एडिशन कर सकते हो, जैसे कि सुपर एनुएशन फंड होता है। पेंशन आपका जो है गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से ड्राइव होता है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप कई कंपनीज में सुपर एनुएशन फंड भी होता है जो आपको असिस्ट करता है एडिशनल फंड्स देने के लिए। हमारे यहाँ पे कोई रिटायर होता है तो हम उसको लास्ट सैलरी में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट करते हैं, प्लस हम ये इंश्योर करते हैं कि उनका ग्रेचुटी उनके रिटायरमेंट के पहले आ जाए और उनके सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाए टिल द पर्सन इज इन द ऑफिस। और उनका PF आफ्टर 60 डेज ही होता है, तो आफ्टर 60 डेज वो चालू होता है। लेकिन एम्प्लॉयज को रिटायर होने के बाद कहीं भी जाना ना पड़े, एंड यू गिव देम all the facilities that the person requires. That should be your approach. Okay, sir. Now this will be the last question. Shweta. Shweta, please unmute yourself. Yes, hello sir. I am Shweta. Sir, I have a question about production. Now during this pandemic situation, impact on production to supply and demand.
can fulfill a demand to production? Sir, her question is in regard to the production system. अभी जो मार्केट का जो डिमांड है उतना हम सप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, वर्कर्स का अवेलेबिलिटी एंड ऑल. ये थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का क्वेश्चन है जो प्रोडक्शन वालों को जवाब देना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फार्मा, यस वी हैव इवॉल्व इन अ वेरी बिग वे. और हर कंपनी जो आज फार्मा या रिलेटेड कंपनीज हैं उनको स्केल अप करना पड़ा है प्रोडक्शन विद लेस मैन पावर. एंड एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है उसकी शॉर्टेज है सप्लाई की, तो वो सारी चीज़ों को प्लान करके करना पड़ा है. और वी हैव बीन सक्सेसफुल. इन द मंथ ऑफ जुलाई वी हैव डन 3 times द प्रोडक्शन दैट we are doing. So it is nothing but planning. So planning we कर सकते हैं. That only requirement for a pharma company is your active pharmaceutical ingredients जो availability of raw material होता है. That is not in your hand, but still things move because for pharma there are special permissions that we take. आपका गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग और गवर्नमेंट नियर बाय इंडस्ट्रीज के साथ लाइजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका वो नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको. जैसे छोटी छोटी चीज़ें के अप्रूवल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका लाइजन, आपका मैकेनिज्म सही है तो यू विल गेट हेल्प, स्पेशली इन द पेंडेमिक. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. I feel majority of the questions which were raised by the students, they all have got fruitful answers for it. So now we will move towards the concluding session. Good afternoon all. Respected and our most distinguished speaker of the day, Mr. Hemendra Sata, respected in charge principal of our college, Dr. Shali Joseph, respected vice principal Bhai Shailendra Mane, and all our beloved students of Human Resource Management Department. On behalf of Yeshwantrao Chavan School of Social Work, today I am really feeling honored and privileged to have this opportunity to propose the vote of thanks to our speaker, Mr. Hemendra Sata, for accepting our invitation and gracing today's session. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. Sir talked about many aspects of HR. This will really help our students for their upcoming career as a HR professionals. Really, sir, it was a very meaningful and wonderful presentation. We are very much thankful to you for this wonderful presentation, sir. Here, I would also like to express my gratitude towards our in-charge principal, Dr. Shali Joseph, for her presence and for her valuable words. Without her support, it would have not been possible to carry on this activity successfully. I would also like to thank our Vice Principal, Mr. Bhai Shailendra Mane, for his moral support and guidance. I would also like to thank our alumni and the Group HR Head of Mutha Group of Industries, Ms. Shakuntala Pawar, for her unflinching support for arranging and communicating with the speaker. It was possible only by her involvement to successfully accomplish this activity. So once again, I thank you, Shakuntala ma'am. I am also extending my gratitude towards all the assistant HR managers of Mutha Group of Industries who have joined this particular session, Mr. Sagar Gowde, Ashwini Shinde, Akshay Shinde, for giving their valuable presence for this session. Finally, thanks to all our wonderful students for their active participation, kind cooperation, and discipline. Once again, I thank all of you for your cordial cooperation. Thank you very much. Meet you again. Now, with the permission of Hemendra sir and Shali ma'am, we will end up this session with a small prayer.
हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना हेच मुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगुदे पुन्हा बसलो मनावर शुद्धतेचे चांदणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी सूर्य सत्याचा उद्या उगवेला आहे खातरी तोवरी देई आम्हाला काजव्याचे जागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले पावले चालू पुढे जे थांबले ते संपले घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा लाभणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना हेच मुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे हीच मुची प्रार्थना Thank you, Hemendra sir, for being with us. Thank you very much. Thank you, sir, and thank you to Shaili ma'am and Shakuntala for giving me this opportunity. It is really a pleasure. मेरे को भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला आप लोगों को देख के, and whenever I am there in Satara, I'll definitely come and meet you all in person. Thank you. Okay, thank you, sir. Dear students, I am sharing the feedback link for this session. Please give your valuable feedback. Also, I will put the link in WhatsApp group also. So thank you very much. Thank you, sir, once again. Thank you, Shakuntala madam, Sagar Gowde sir. Thank you. Thank you, dear students. Okay, sir. Bye. Students, please go through the feedback link. Okay, sir.